Hi students, how are you? Myself Hobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teachers. So today we will discuss some 3D related questions, three-dimensional geometry, and I think in the straight line in space, this concept was started in the last lecture, and we had discussed many more things regarding this straight line in space. Okay, or today we will solve some questions. 2-3 questions from this straight line in space, NCERT exercise 11.2. okay, NCERT exercise what 11.2, उसमें हम लोग कुछ questions solve करेंगे, and the angle between two lines, we will learn how to find the angle between these two given straight lines. okay, ये भी हम लोग सीखेंगे. ठीक है, so before starting the lecture, just I want to share something. If you like my videos, then please subscribe, like, and share my channel. Okay, and I need your support, I need your blessings. So please share करिए, जितना हो सके उतना share करिए. ठीक है, ओके. अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, दो लाइंस के बीच एंगल, it is not the new concept. No, if you want to find the angle between two lines, just like that, okay, two lines, they are intersecting each other, then I think after intersecting these two lines, I think some angles will be created here, and after that you need to find the angle between these two straight lines. You have the different formulas in class 10, in class 11. okay, so in 3D, whenever just you are dealing with the straight line in space, that means एक स्पेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन जो है ना, ऐसे 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 घूम रहा है. ठीक है ना, अब ये घूमते घूमते किसी एक दूसरे किसी स्ट्रेट लाइन से तो एंगल तो बना सकता है, तो वो एंगल कैसे निकाले, दैट मींस 3D में एंगल कैसे निकाले. ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन हेडिंग. ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सबसे पहले मुझे सीखना है. फिर उसके बाद हम लोग इससे ही रिलेटेड परपेंडिकुलर और पैरेलल फॉर्मेशंस में जाएंगे. ठीक है, लिखो, इसमें भी दो टाइप होता है, दो प्रोसीजर होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा वेक्टर फॉर्म. ठीक है, लिखो, if two straight lines, x minus x1 by a1 equals to y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2 are two lines, then angle between them, ठीक है, क्या होगा, cos theta equals to cos theta equals to फॉर्मूला क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है. ठीक है, ये होगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है, दो लाइंस के बीच एंगल निकालना. ठीक है, तो यहां से दो सब केसेस मिलता है. ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर का, दूसरा होता है पैरेलल का. ठीक है, तो सब केस लिखो, इफ दे आर, अब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, देन हाउ कैन यू वेरीफाई, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. That means whenever these two lines are perpendicular to each other, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. That should be proved. Okay,
Point number 2, if they are parallel, then how can you verify? A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. That means their direction ratio will be proportionate. Proportionate मतलब समझते हो ना? Proportionate मतलब समझते हो? That means हर जगह जो है ना, ये जो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, their ratios will be same. रेशियो सेम होगा. दैट मींस डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद सम फ्रैक्शंस विल बी देयर. तो हर जगह एवरीवेयर दिस फ्रैक्शंस मस्ट बी सेम फॉर गेटिंग दिस पैरेलल लाइंस. ओके, तो ये तो गया फॉर द कार्टेशियन फॉर्मेशंस ऑफ टू लाइंस. दीज आर कार्टेशियन फॉर्मेशंस. ओके, नाउ इफ यू डील विद द वेक्टर फॉर्मेशंस, अरे भाई ये वेक्टर फॉर्मेशंस में एंगल्स जो है ना वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो शुरू करो. पॉइंट नंबर 2 लिखो. इफ टू लाइंस इफ टू लाइंस देखो, एक तो ये है आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1. ये तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे ही लिखा जाता है कि नहीं. एंड दूसरा लाइन क्या होगा? R इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर. देन फॉर्मूला क्या होता है? एंगल. Angle between them cos theta equals to B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर. ठीक है, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर. ये B1 और B2 है क्या? है, याद है ना, ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है डायरेक्शन रेशियोज लेके जो वेक्टर बनाया गया था वो होता है B1 एंड B2. ठीक है, तो B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ B1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ B2. ठीक है, हो गया. अच्छा, अब यहां से दो सब पीसेस मिलता है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कब होता है? जब B1 डॉट B2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है. ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दो लाइंस पैरेलल होगा. कब पैरेलल होगा? जब B1 वेक्टर डिवाइडेड बाय B2 वेक्टर, ठीक है, कुछ कांस्टेंट होगा, मतलब कुछ नंबर्स निकलेगा, कुछ रियल नंबर्स निकलेगा. ठीक है ना, तभी ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ना, दोनों वेक्टर जो है पैरेलल होगा. ठीक है? तो ये है ओरिजिनल फॉर्मेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर B1 वेक्टर को कैसे, यहाँ पर एक नोट आप लिख के रखिए, B1 और B2 वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, वहां पर B1 और B2 वेक्टर कैसे हम लोग मतलब समझेंगे, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि B1 और B2 वेक्टर कैसा रहेगा. ठीक है, सपोज B1 वेक्टर ऐसा रहेगा, B1 वेक्टर इक्वल्स टू ऐसा रहेगा कुछ A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप. यहाँ पर A1 B1 C1 क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, और B2 वेक्टर क्या होगा? B2 वेक्टर A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप. ठीक है ना, अब दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं, डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा भाई, बोलो तो? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है. आ गया ना? देखो तो ये है, आ गया ना. फिर मॉड्यूलस ऑफ B1 वेक्टर, दैट मींस क्या है? मॉड कैसे निकाला जाता है? मॉड B1 वेक्टर क्या होगा? मतलब रूट ओवर इसका होल स्क्वायर कर दो, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर. और मॉड ऑफ B2 वेक्टर क्या होगा? रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. यही तो हम लोगों ने लिखा है, देखो यहाँ पर. तो मतलब वही वेक्टर फॉर्म वही है, जस्ट तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है.
but if you solve this vector form, you will get the Cartesian form again. Okay, so there are no difference between these two, vector form and the Cartesian forms, both are same. Okay, now related to these concepts, we will solve some questions from NCERT exercise 11.2. ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे NCERT एक्सरसाइज 11.2, NCERT 11.2, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 11.2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर मैं जो है ना NCERT बुक का जो क्वेश्चंस है, मैं साइड में आई विल share this image on the screen. Just you can see on the screen. Actually, I think it may be surfacing on the screen. Okay. So show that the line through the points. Question number 2. Question number 2 देखो. Show that the lines through the points 1, -1, 2, 3, 4, -2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6. ठीक है, दो लाइंस हैं। अब तुम्हें देखना है कि शो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर फिगर ड्रॉ करूं, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका दोनों एंड पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्या क्या एंड पॉइंट्स है? 1, -1, 2, 1, -1, 2, और दूसरा है 3, 4, -2, और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा है, ये होगा 0, 3, 2, और ये होगा 3, 5, 6। ठीक है, just you need to verify whether these two lines are perpendicular or not. So according to the concept, if you want to solve it in Cartesian form, then I think you should find the direction ratios. Without finding the direction ratios, you can't find the angle between these two lines. Okay, तो यहाँ पर एक काम करो, उसको नाम दे दो तुम AB, ये AB, ठीक है, और ये CD। लिखो here direction ratios of AB। AB का डायरेक्शन रेशियो क्या है, थोड़ा देखो, 3, -1, 4, -1, ठीक है, और -2, -2। ठीक है, तो 2, 5, -4, 2, 5, -4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, ठीक है, 2, 5, -4। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD क्या होगा? 3, -0, ठीक है, 5, -3 and 6, -2, right? So 3, 2 and 4. So these are the direction ratios of the lines AB and CD. Now we need to find A1, A2, B1, B2 and C1, C2 value. If this value is 0, then these two lines are perpendicular, it is sure. Okay, तो यहां पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 के वैल्यू निकाल के देखो, है 3 into 2 plus 5 into 2, okay, and then -4 into -4। okay, तो यहां पर क्या होगा? 6 plus 10 minus 16, that is 0। Since A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equals to 0, so AB
परपेंडिकुलर टू CD। बस हो गया, वेरीफाई हो गया। AB और CD परपेंडिकुलर है, ये श्योर है कि नहीं? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेम पैटर्न का ही है। हाँ, यहाँ पर पैरेलल देखना है। यहाँ पर क्या है देखो, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8, 2, 3, 4 is parallel to the line through the points -1, -2, 1 and 1, 2, 5। ठीक है, 1, 2, 5। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो एक ही है, गिवन लाइंस having the points देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4, 7, 8, 2, 3, 4। ठीक है, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अच्छा इसको अगर मैं ए ले लूं, एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को ए ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट को बी ले लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB का डायरेक्शन रेशियो यहां पर क्या होगा, 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8, -2 -4 और इधर भी -4, -2 -4 ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB होता है कि नहीं? सिमिलरली second line having the points। ठीक है, दूसरा जो लाइन है उसका भी तो पॉइंट्स गिवन है, क्या है, -1, -2, -1, -2, -1 and 1, 2, 5। ठीक है, then direction ratios of CD, direction ratios of CD का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये देखो पॉइंट्स गिवन है, बस हो गया। अगर पॉइंट्स आपको पता हो तो व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट, ओके, तो जस्ट 1 minus of -1, just differences between the coordinates, just find it, 2, this minus of -2 and 5 - 1। ओके, सो यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 4, यहां पर होगा 4। ठीक है, हो गया। अच्छा यहां पर देखो, नाउ A1/A2 इसका आंसर क्या होता है, देखो -2/2 क्या होता है भाई आंसर, -1। B1/B2 इसका आंसर क्या होता है, -4/4। C1/C2 का आंसर क्या होता है, -4/4। सो सिंस A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2, so AB पैरेलल टू CD। यही तो पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी है कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। तुम्हें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, वन पॉइंट गिवन है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, just try to remember the first lecture from the straight line in space, okay, when the one point is given and one straight line is given, just see the question number 4, find the equation of the straight line which passes through the point 1, 2, 3। एक पॉइंट से पास होता है, बस चला गया, पास होकर चला गया, ठीक है, and it is parallel to the another vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है
और पैरेलल टू द अनदर लाइन। तो मैंने बोला था इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel, then their direction ratios must be same. So if you want to find the direction ratios of your required line, then you can consider the same direction ratios whatever you have for the given straight line. तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, दैट मींस वेक्टर फॉर्म में गिवन है, क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर फॉर्म हो कार्टेशियन फॉर्म हो। हाँ, वेक्टर फॉर्म में मैंने बोला था डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होगा, आई जे के साथ जो चिपका हुआ है, जो कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर ऑल डायरेक्शन रेशियोज। बस हो गया, ठीक है। बस चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, लेट अस एज्यूम, अब क्वेश्चन ही है आप क्या ये वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। Since the other straight line formations is in the vector form, then we should actually follow the vector formations, okay? But you are not so much bound to follow the vector formations. You can choose either of these two processes, okay? Either you can choose actually this Cartesian formations or you can choose the vector formations also. It depends on you. But remember one thing, in the vector formations, the calculation used to be very much, that means very small calculations used to be there, okay? You can follow, no problem. And in the Cartesian formations, calculation is easy, okay? ठीक है। वेक्टर फॉर्मेशन में थोड़ा क्लमजी होता है बट शॉर्ट होता है, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्मेशन में क्या होता है, थोड़ा लेंथी होता है बट इजी होता है, ठीक है। एनीवन यू कैन फॉलो, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं रहेगा कि कार्टेशियन फॉर्म में निकाल के दिखाओ, वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखाओ, लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखिए, find the equation of the line which passes through the point 1, 2, 3। okay, very good। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं निकालना चाहूं तो we should consider the equation in the vector form, assume करना पड़ेगा। लिखो, let us assume let us assume equation of straight line। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन required line passing through एक पॉइंट से पास होता है, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, 3। और मैंने बोला था whenever you are dealing with the vector form, then the point coordinate should be represented by a vector, okay? So this point coordinate, how can you represent it in the vector form? Just write the point coordinate and ijk, okay, just like that, okay? It is the position vector, it is called position vector and we had discussed also, okay? तो ये a vector है, ठीक है। now required line parallel to another line क्या है, 3 i cap plus 2 j cap minus 2 k cap, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन है, अब पैरेलल हो कुछ भी हो, एक लाइन तो है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या होगा, 3, 2, -2। दैट मींस इस रिक्वायर्ड लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, 3, 2, -2। तो ये जो बी वेक्टर है ना, इससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो सो बी वेक्टर क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो डायरेक्शन रेशियो को लेके जो वेक्टर बनाया गया है वही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। दैट मींस ये सेम ही होगा क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर क्या है, 3, 2, -2। तो 3, 2, -2 डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर उसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, आई जे के लगा दो उसके साथ, बस हो गया बी वेक्टर। तो बस
Now you know the value of a vector and the b vector. Just replace these values in equation 1. You will get the final equation of the straight line in the vector form. Okay. Now from 1 r vector equals to a vector, that means I plus 2j plus 3k. Okay. Then plus lambda into b vector, that means 3i plus 2j minus 2k. ठीक है, it is your final answer. ठीक है, हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को. हाँ, सपोज ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन का, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट यू शुड learn this concept, this topic. You may face the various questions, you may confront various questions in the future also. Okay, how to convert a vector form to the Cartesian form, how to convert a vector form into the Cartesian form, and how to convert a Cartesian form to the vector form, and we had discussed in the first lecture also. Okay, we had discussed these things, how to conversion between the vector form and the Cartesian form. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में दिखा देता हूं, है कि कार्टेशियन फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है ना, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहां पर लिखो कन्वर्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट तुम सीखने के लिए लिखो कन्वर्शन. ठीक है. अच्छा, तो जैसे कि हम लोग, मैंने बोला था कि आर वेक्टर मतलब क्या होता है, एक्सिस वेक्टर होता है, और एक्सिस वेक्टर कार्टेशियन मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई जेड. ठीक है, ठीक है. अच्छा, मतलब आर वेक्टर की जगह ये मैं रिप्लेस कर सकता हूं. ठीक है, करो रिप्लेस, ये है, रिप्लेस करो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल्स टू, ये अगर मैं मल्टीप्लाई मारूं, देखो तो क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, थोड़ा वेरीफाई करो, 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, राइट, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप. ठीक है, फिर प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप, राइट. हो गया, मतलब ये जस्ट राइट साइड में मैंने आईजे के कॉमन लेके एक स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है, अब इफ यू कंपेयर on both sides, then x equals to this, y equals to this, z equals to this, ऐसे लिख सकते हैं. Comparing both sides, comparing the coefficients of I, J, K on both sides. ठीक है, comparing, लिख लो, comparing on both sides. ठीक है, क्या मिल रहा है, x equals to 1 plus 3 lambda, y equals to 2 plus 2 lambda, z equals to 3 minus 2 lambda. तो यहां से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूं, x माइनस 1 बाई 3, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालूं y माइनस 2 बाई 2, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालूं z माइनस 3 बाई माइनस 2. तो ये तीनों लैम्डा का वैल्यू है ना रे भाई, तो तीनों लैम्डा का वैल्यू है, दैट मींस दे मस्ट बी सेम. ओके, सो x minus 1 by 3 equals to y minus 2 by 2 and z minus 3 by minus 2. लो, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन का. ठीक है, तो ऐसे ही just like this way you need you will have to convert any vector form of the straight line to the Cartesian form of the straight line. ओके, तो यही चीज मुझे आज डिस्कस करना था. वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओके, तो enough for today. Okay, I will discuss some other questions in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy. Okay, and if you like my videos, then please subscribe, like, and share my channel, and just convey this message that actually this the whole NCERT solves is going on in this channel,
and sir will continue this JEE and the IIT questions also, IIT classes also. Just you should join the classes and then actually share with your friends, with your classmates. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.